بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ظفر شیخ اور آپ مجھے دیکھتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کوپن ہیگن ڈینمارک. اور میری یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنے کام کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی گفتار کے حوالے سے بہت نام بھی کمایا ہے، عزت بھی کمائی اور پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں. ایک تو یہ ڈینمارک میں تشریف لائے اور بہت اچھا لگا اور لاسٹ ٹائم بھی ان سے ملاقات ہوئی اور اس دفعہ بھی اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، خوش آمدید ڈینمارک میں بھی. اور میں ایک گزارش کر رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے، اور جب بھی ملاقات ہوتی ہے آپ سے مل کے بہت اچھا لگتا ہے. اور آج بھی آپ نے جو میری خان صاحب کی اور نور جہاں کی یادیں تازہ کی، اور بڑا آپ نے وہ مسئلہ کیا جو نسبتاً کم جائے گا سر، مگر اسے بہت ہی پسند محمود علی صاحب کے اور سنگیتا الگ الگ اس میں، اور وہ بول بھی کمال ہے. یہی بول جو ہے نا، یہی پیغام لوگوں تک جانا چاہیے. 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، اس کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا، یہی زندگی کی. شاہ صاحب شاعری کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں یا پوری دنیا میں اوورسیز موجود ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں ادب کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں شاعری کے حوالے سے نئی نوجوان نسل جو کہ آئی ٹی میں بہت اچھے کام کر رہی ہے اور اس وقت اے آئی جو انٹرنیشنل آرٹیفیشل ٹیکنالوجی انٹیلیجنس بھی آ چکی ہے، تو یہ شاعری کے حوالے سے آپ ذرا بتانا چاہیں گے کہ کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل اگر آپ آج کی تقریب دیکھیں، جس طرح سے جیم پیک تھا اور جس طرح سے لوگ، میں چونکہ اس کا حصہ تھا اس لیے مناسب نہیں کرتا ہوں. اگر آپ دیکھیے کہ پورے ہال میں جگہ جگہ ہر ٹیبل پہ لوگوں کو اشعریات تھے، وہ اشعار پڑھ رہے تھے، میرے ساتھ دہرا رہے تھے، ان کی فرمائشیں کرتے تھے. تو وہ اس سے آپ کو پاکستان میں لٹریچر سے لوگوں کو محبت ہے، ادب سے لوگوں کو محبت ہے. ہماری بھی جو عزت افزائی ہے وہ اللہ کی مہربانی سے اسی کو فعل ہے کہ ہم ادب سے اور قلم سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور دیکھیے اس کی وجہ ہے یہ جو زمین ہے، پورا خطہ ہے، یہ غالب کا، میر کا، بابا بلے شاہ کا، سچت سرمست کا، خوشحال خان خٹک کا، اقبال کا، اور میاں محمد صاحب کا، وارث شاہ کا، مستوقلی کا. تو آپ جانتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی، ہمارے لوگوں کی رگوں میں، نس نس میں دوڑ رہا ہے. اچھا شاہ صاحب، کتنا عرصہ اس وقت تک آپ کو ہو چکا ہے اس فیلڈ میں، خاص طور پہ شاعری کا اگر میں پوچھنا چاہوں تو اس کے ساتھ ساتھ کتنی کتابیں آپ کو تصنیف کرتی ہیں؟ دیکھیے، کتابیں میری آئی تو 3 ہے، اور یہ ہے کہ ان کی تعداد فروغ کے حوالے سے بہت اچھی رہی. اور یہ ہے کہ جو پلیز میں لکھتا رہا ہوں مختلف چینلز کے لیے، ان کو ہم نے بک فارم میں کر دیا. اس طرح سے ملا کے 12 کتابیں، شاعری کی بنیادی کتابیں نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ آپ ان سے اچھا نہیں لگتا کہ غیر معمولی الحمد للہ سیل رہی، فروخت رہی. اور یہ بھی اس بات کی، اس عمر کی دلیل ہے کہ اب تو دیکھیں نا، مثال طور پر سوشل میڈیا پہ لوگ کرتے ہیں اور وہ فری ایک طرح سے اس کو سنتے ہیں. ہماری کتاب جو ہے ابھی بھی سیل ہوتی ہے، اور وہ ایک اچھی خاصی رقم دے کے لوگ خریدتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آج بھی شعر سے، لٹریچر سے اور شاعری اور ادب سے جڑے ہیں. اچھا، شروع میں آپ کس شاعر سے انسپائر ہوئے تو آپ نے سوچا کہ میرے اندر یہ ہیں جراثیم شاعری کے، تو میں اس طرف کچھ کروں؟ ہاں، دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا. اصل میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور میں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی اداس نہیں کرنا چاہتا، مگر میں نے پہلا شعر کہا تھا جب میں 8 برس کا تھا. تو تقریباً آپ سمجھیے کہ 40-42 سال ہو گئے. اور پھر باقاعدہ 96 میں تو میں پاکستان میں اس کی پذیرائی شروع ہوئی، ورنہ سرگودا میں اس سے پہلے شعر کہتے تھے اور مشاعروں میں شرکت کرتے تھے. تو 8-9 سال کا تھا تب سے میں نے شعر نظر کی، اور باقاعدہ مشاعروں میں تقریباً 14-15 برس کا تھا تب سے سال سے شروع کیا. اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے
देखिए, ये होता ही है कि मुख्तलिफ कैफियत होती हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ तरह के मौसम होते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ तरह के अदवार से आप गुजर रहे होते हैं, और फिर आप वक्त के साथ साथ आपके ख्यालात और फिक्र में, सोच में तब्दीली भी आती है। बाज़ औक़ात सिर्फ तब्दीली आती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप ग्रो कर रहे होते हैं। तो जो लोग इब्तिदा में भी आपके साथ होते हैं, जब आप किसी वजह से आप ये समझिए कि मैं समझता हूँ कि जो आपकी 5वीं जमात का टीचर हैं, या जो हमें प्री स्कूल में पढ़ाते थे, प्ले ग्रुप में पढ़ाते थे, बाद वाले उस्ताद भी यकीनन बहुत मोहतरम है, मगर हर वो शख्स जिससे आपने सीखा है वो बाज़ औक़ात ना 5वीं का सब्जेक्ट तो शायद हम नहीं पढ़ सकते, मगर वो उस्ताद उसी तरह हमारे लिए मोहतरम है। इसी तरह से वो लोग जो इब्तिदा में जो अच्छे लगते थे वो आज भी बड़े काबिल एहतराम हैं। मगर अब अगर आप मुझसे पूछें तो मीर गालिब 2 ऐसे शायर हैं और इकबाल 3 ऐसे शुराए का नाम है जो कि कई काफ़ी अरसे से जिन्होंने अपने शहर में लिए रखा, और एक जैसा तो नहीं कह सकते, मगर वैसे कोशिश होती है। मेरा शेर है ना कि जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई, जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियाँ। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से, मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से, मुझे तो विरसे में हैरानियाँ मिली। तो हमारे लिए यही फ़ख्र बहुत है कि हम मीर गालिब और इकबाल के कबीले से। ठीक है। अच्छा, शायरी में आपने उर्दू का इंतखाब किया, पंजाबी की तरफ आपका नहीं, मैंने अभी पिछले दिनों, और ये मैं भी सोचता था तो यार ये क्यों नहीं, क्योंकि हमारी ज़्यादा जी बिल्कुल पंजाब या पाकिस्तान के कह जी हाँ, तो नहीं, हर एक वैसे तो मेरी ख्वाहिश ये है कि लेकिन ना आइडियली तो ये है, जैसे हमारी दोस्ती है, जो हमारे पख्तून भाई हैं, जो बलोची हमारे भाई हैं, सिंधी हमारे दोस्त हैं। मैं काम करता था, मुझे याद है मैं जो हमारे पख्तून भाई हैं उनसे मैं मुहावरे लेता था, सिंधी मुहावरे में लेता था, मतलब वो चांडियो साहब से हमारे बड़े मुहब्बत दीप भी हैं, सियासतदान भी बड़ा है। तो सारी ज़ुबानें वैसे तो हमें आनी चाहिए, मगर ये है कि पंजाबी में मैं सोचता था, जो चीज़ें लिखता था उससे मैं मुतमईन नहीं होता था। तो अभी मैंने एक 2 गज़लें कहीं, उससे निस्बतन मैं मुतमईन हूँ, मैं शेयर भी करता हूँ, और नज़में में भी कुछ मैंने इसमें से एक आपकी शेर हाँ, मैं आपको सुना देता हूँ कि मैं कौन सी कदर नहीं की हूँ मेरी कंधा दे तस्वीर ला के जब मैं कौन सी कदर नहीं की हूँ मेरी कंधा दे तस्वीर ला के वेख्या कर, और इसको आप साथ रखें क्योंकि ताज़ा है तो। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं मेरे पास अभी लिखी है वो, अच्छा। और उसमें जो चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, ये भी चूँकि अभी शुरू की है पूरी तरह से। अच्छा, इस वक्त आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और बहुत अच्छे तरीके से आप निभा भी रहे, टीवी के साथ रहते हैं, एंकर भी आप कर रहे हैं, तो शायरी को टाइम मिल जाता है, मैनेज कर लेते हैं? जी, शायरी तो मेरी देखिए ऐसी जो मोहब्बत है, ये जो मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं, तो आप खुद टीवी से वाबस्ता हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं। बुनियादी तो काम हमारा इल्म का है, इल्म से हम जुड़े हुए लोग हैं, फ़लसफ़ा है, तारीख़ है, सकाफ़त है, तहज़ीब है। आपका काम जो है पढ़ना है, आप पिछले 8-10 सालों में मेरी साइंस में स्पेस के जो मज़ामीन है उसमें बहुत दिलचस्पी बढ़ी है, नफ्सियात है, यही हमारे मज़ामीन हैं। इनका इजहार बाज़ औक़ात ड्रामे की शक्ल में होता है, बाज़ औक़ात आप गुफ्तगू करते हैं, शो में आप उसको हिस्सा बनाते हैं, और बाज़ औक़ात कॉलम की शक्ल में होता है, और फिर शायरी की शक्ल में होता है। तो मगर इन सब में जितने भी मीडियम हैं, सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, सबसे पहले जिस मीडियम में मैंने काम करना शुरू किया, जिस मीडियम में सबसे ज़्यादा हमारी ताला ने कबूलियत अता फरमाई मुझे, पसीराई बख्शी, फिर मैं खुद जिसका ज़्यादा प्लेजर लेता हूँ और ज़्यादा मुझे लुत्फ़ आता है, वो शायरी है। तो वो उसको मैंने कभी भी जिसे कहिए कि इग्नोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी है। टीवी में भी उनका कैसा दिया अच्छा रहा, और मैं तो बुनियादों पे पाकिस्तान टेलीविज़न से रात किया करता था। पाकिस्तान टेलीविज़न ही की प्रोडक्ट है हम। जी हाँ, और बहुत हमने सीखा पाकिस्तान टेलीविज़न से, लोगों से, जो लोग वहाँ आते रहे, रात गए आपको याद होगा। तो फिर ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जब गए थोड़ा सा तो इसमें आप क्या समझते हैं या क्या करना चाहेंगे, जिसमें भी आपका माशाल्लाह तो इसमें आप क्या भी तब्दीली लाना चाहते हैं? देखिए, मेरा
समझते हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है जो डे टू डे अफेयर्स हैं उसके अंदर रहते हुए काम करना और गैर सियासी तरह से जिम्मेदारी है ये और गैर जानिबदाराना। मैं भी उसी दायरे के अंदर रह के अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गैर सियासी जिम्मेदारी है, गैर जानिबदाराना है। पाकिस्तान पूरे 25 करोड़ का मुल्क है और जितने भी किसी की कोई भी सियासी एफिलिएशन हो वो मेरे लिए मेरा तो काम है पूरे पाकिस्तान को 25 करोड़ को सियाहत के हवाले से जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एक तो ये बात है और दूसरे ये है कि उस डे टू डे अफेयर्स के अंदर रहते हुए भी अब अपने आप में वक्त है कि नहीं है मगर हमने कोशिश की है कि 1-1.5 महीने में कितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ बुनियादी ऐसी चीज़ें की हैं कि जो जी हाँ देखिए इसमें हो चुके आप ही के चैनल से बहुत सारे प्रोग्राम चल भी चुके हैं और मैं अंदर भी लोग वेट कर रहे हैं मगर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ जैसे मैंने शुरू किया था सफ़र हमारे जो नॉर्थ एरियाज़ हैं खासतौर पर कश्मीर वगैरह का जीबी का जो एरिया है उसमें हमारे जो वोटर जो भाई हैं उनकी इंश्योरेंस का इंतजाम है। उससे पहले मैं इस पर तबसरा नहीं करता कि क्यों नहीं था मगर बाकायदा इंश्योरेंस का कोई इंतजाम नहीं था। अभी हमारे एक वोटर भाई का वहाँ इंतकाल हुआ, डेथ हुई उनकी हादसे में, कोई इंश्योरेंस उनके लिए नहीं। उसको मैंने कंसेंसस डेवलप किया उस कंपनी में कि हमने लोगों को भी कोशिश है कि मैं उसको 50 लाख तक ले जाऊँ, 40 लाख तक ले जाऊँ कम से कम, मगर 30 लाख की इंश्योरेंस तो हमने पहली मरतबा अभी इसकी समरी होने वाली है, इसके ऊपर काम है। हमें जो वक्त मिलेगा इसके अंदर हो गया तो ठीक है, नहीं तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है आए उसको आगे बढ़े। तो कोशिश ये कि डे टू डे अफेयर्स के अंदर रहते हुए उस आप उनका जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो मैंडेट है उसमें भी ना करें, लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसको इलेक्टेड गवर्नमेंट खुद भी ये कहेगा कि कौन ये कहेगा कि रिपोर्टर्स की इंश्योरेंस नहीं होनी चाहिए, उसको हमने सिस्टम में उसका हिस्सा बनाया। जी हाँ, अच्छा काम है। उसके बाद वहाँ देखिए ट्रेनिंग का कोई स्कूल नहीं था, तो ट्रेनिंग के स्कूल के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। इब्तिदा में गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग MOU साइन करने जा रहे हैं, उससे बातचीत काफ़ी आगे बढ़ गई है और वहाँ पे हम उसकी तरह से बुनियाद रखते हैं। अगेन तो बहुत है बड़ा लंबा चौड़ा काम है, उसके लिए इमारत चाहिए, बाकायदा स्कूल चाहिए। हम जो कर सकेंगे करेंगे, फिर आने वाले इसको आगे बढ़ाएं। इससे पहले वो भी बाकायदा कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें जो डे टू डे अफेयर्स में भी हों, इलेक्टेड गवर्नमेंट की के अंदर मुदाखलत भी ना हो, मगर इलेक्टेड गवर्नमेंट खुश हो कि अच्छा भी ये किसी ने शुरू किया, हम तो इस मुख्तसर अरसे के लिए भी आए हैं और जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर और अभी जैसे सियाहत का आलमी दिन जो मनाया गया, इससे पहले कोई इसमें हर्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि हमेशा मनाया जाता था और वो मनाया जाता था हमेशा होटल्स की चारदीवारी। तो मैंने एक ये रवायत डाली है, मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसको अल्लाह ने चाहा जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो इसको कंटिन्यू करेगी। हम बहुत सारे एम्बेसडर्स को लेके इस्लामाबाद से जो हमारा ऑफिस है उसकी जिम्मेदारी मेरे पास होती है, चेयरमैन हूँ। वहाँ से हम लेके गए थी टैक्स लॉ। हमारे साथ अवाम थी, हमारे साथ ख़वातीन थी, हमारे साथ मीडिया था, हमारे साथ फॉरनर्स थे, हमारे साथ एम्बेसडर्स थे कई वाले और एम्बेसीज के कई लोग थे। और फिर हम टैक्सला हमने जाके उस दिन को सेलिब्रेट किया। ठीक है, हमने कहा कि टूरिज्म डे का तो मतलब है लोगों को घरों से निकालना, तो होटलों की चारदीवारियों से हमने निकाला, इतनी दुनिया उसमें खुश हुई। तो इस तरह की चीज़ें। फिर अभी जैसे पहली जो ऐप है सियाहत के हवाले से होनी चाहिए, लोगों को कैसी आसानी होनी चाहिए, मुख्तलिफ तरह के मॉडल जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में क्या, मगर उसके ऊपर अगेन हमारे वक्त में अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको आगे गवर्नमेंट जो है उसको करे। तो अब देखें ना, इससे पहले तो बाकायदा ऐप नहीं थी कि एक क्लिक करें और आपको होटल का पता लग जाए, रेस्टोरेंट का पता लग जाए, उनके जो फूड के हवाले से पता लग जाए, मौसम के हवाले से पता लग जाए, ट्रांसपोर्ट के हवाले से पता लग जाए। तो पाकिस्तानियों के लिए भी, पाकिस्तान से बाहर भी जो सयाह आएंगे, वो एक ऐप है, आपने क्लिक किया और सारी तफसील जो है वो आपको, और उसके अंदर सयाहों को अगर मुश्किल पेश आती है तो उन्होंने रब्ता कहाँ करना है उस हवाले से भी पता लगता है। तो ये भी हमने इसको भी शुरू कर दिया, इसको बताना शुरू कर दिया। फिर मेरी इब्तदाई बातचीत हुई और अब जाके मैं मीटिंग्स करूँगा फौरी तौर पर, कि मेरी बड़ी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आप करें तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास तो उस तरह का मैंडेट नहीं है, वक्त नहीं है, मगर ये है कि आने वालों को भी
काम अगर नहीं होता 4 साल में जो आने वाले हैं, तो उसमें परेशान उनको नहीं होना चाहिए। तो सफ़र है, बहुत सारे काम हम अपनी नस्लों के लिए कर रहे हैं। तो मेरी बड़ी इसके ऊपर तवज्जो है कि मैं इसकी बुनियाद रख सकूँ कि मेडिकल टूरिज़्म पाकिस्तान में, उसके लिए मैं जो डॉक्टर्स हजरात हैं उससे मैं मुलाकातें करूँगा, जाके मुलाकातें में शेड्यूल है कि जी वहाँ जाके हमें पता लगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको हम मेडिकल उसमें हम सेल कर सकते हैं दुनिया में। कि आप आइए 2 दिन के लिए, आप आइए दो दिन के लिए, और उसके बाद आप इलाज भी कराइए और 1 दिन आप खाइए। और जैसे टर्की कर रहा है, जैसे चाइना में लोग इलाज करा रहे हैं, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में लोग इलाज करा रहे हैं, उससे भी टूरिज्म को वो मिलेगा। क्योंकि पूरी दुनिया में नए मॉडर्न के तरीके हैं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल बकायदा पैकेज अनाउंस कर सकते हैं, उस पैकेज का वो हिस्सा हो सके, उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, आज आप याद रखिएगा, इस पर अगर हमारी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, मुझे पूरा यकीन है, उन्होंने सपोर्ट का भी यकीन कराया कि अगले आप देखिएगा कि हम तो अपना ही काम करके चले जाएंगे ये 4-5 साल में। तो उससे पहले क्वेश्चन जो है, अल्लाह ताला आपको इसमें हिम्मत भी दे और इसका अजर भी दे, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त मैं उसमें मुकम्मल करूँ कि हमारे जो मेडिकल कम्युनिटी है उसको भी उससे फ़ायदा है। अब टर्की में अगर इस हवाले से काम हो रहा है तो टर्की की जो मेडिकल कम्युनिटी है उसको भी फ़ायदा हुआ है, डॉक्टर्स को भी फ़ायदा हुआ है और टूरिज़्म को भी फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो बस ये है कि नए नए आइडियाज होता है कि अब सबसे जिम्मेदारी है 24 घंटे सोचते रहते हैं कि यार जो अर्सा है आगे मैंडेट के अंदर रहते हुए, डे टू डे अफेयर्स के अंदर रहते हुए क्या हम कर सकते हैं, और ताकि ये हो कि अच्छा भाई 2-4 महीने का जो वक्त अदा करेगा इलेक्शन गवर्नमेंट आएगी, मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा काम आप करें तो वो भी इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल अल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोपनहेगन, डेनमार्क।